السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شہاب الدین غوری اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 26۔ دیوداس اور سنگرام دونوں حویلی سے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ حویلی کے اندر سے رامداس گھبراہٹ میں بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ اسے اس طرح بھاگتا دیکھ کر دیوداس اور سنگرام دونوں فکر مند اور پریشان ہو گئے۔ ابھی وہ ذرا فاصلے پر ہی کھڑا تھا کہ دیوداس نے پریشان کن آواز میں اسے مخاطب کر لیا۔ رامداس، کیا ہو گیا؟ تم اس قدر بدحواس اور بھاگتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ دیوداس کے اس استفسار پر رامداس گھبراہٹ اور پریشانی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، میں راج کماری کے لیے صبح کا کھانا لے کر گیا تھا۔ کافی دیر میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ کئی بار میں نے دروازے کو دھکے بھی دیے، پھر زور زور سے کھٹکایا بھی، لیکن اندر سے دروازہ نہیں کھل رہا، جس کی بنا پر میں پریشان ہو گیا ہوں اور کھانے کے برتن وہاں ہی رکھ کر میں آپ لوگوں کی طرف بھاگ آیا ہوں۔ رامداس کے اس انکشاف پر دیوداس اور سنگرام دونوں ایک دوسرے کی طرف تفکرات بھرے انداز میں دیکھنے لگے۔ پھر دیوداس بول پڑا، صبح سویرے میں بھی اس کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں نے دستک دی، پھر لوٹ آیا، دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید وہ سو رہی ہو، لیکن پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ پہلی دوسری دستک پر ہی وہ دروازہ کھول دیا کرتی تھی۔ آؤ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سنگرام اور دیوداس رامداس کے ساتھ ہو لیے۔ کھانے کے برتن دروازے کے ایک طرف پڑے تھے۔ آگے بڑھ کر دیوداس نے کئی بار دروازے پر زور زور سے دستک دی، لیکن اندر سے کسی رد عمل کا جب اظہار نہ ہوا تب دیوداس ہی نہیں سنگرام بھی پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف رامداس نے بھی اپنے چہرے پر مصنوعی تفرقات اور پریشانیاں بکھیر لی تھی۔ اس موقع پر سنگرام نے دیوداس کو مخاطب کیا، دیوداس، معاملہ مجھے کچھ گڑبڑ سا لگتا ہے۔ کہیں اس راج کماری نے تم سے تنگ آ کر زہر کھاتے ہوئے اپنا خاتمہ تو نہیں کر لیا؟ سنگرام کے الفاظ پر دیوداس پریشانیاں ہجوم کر آئی تھی۔ گھبراہٹ بھری آواز میں کہنے لگا، سنگرام میرے بھائی، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ اس نے اپنے پورے ہوش اور حواس اور پوری طمانینت اور خوشی سے میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھری تھی، اور اب اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں دروازہ توڑتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ سنگرام نے اسے اتفاق کیا۔ پھر دونوں ایک ساتھ ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے دروازے پر اپنے کندھوں کو زور مارنے لگے۔ چند بار ایسا کرنے سے دروازہ ٹوٹ کر گرا۔ دروازے کے گرتے ہی جب انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گئے، اس لیے کہ کمرہ تو خالی پڑا تھا، مسہری پر کچھ نہیں تھا۔ سنگرام اور دیوداس تقریباً بھاگتے ہوئے آگے بڑھے۔ دونوں نے مسہری کے پائے کے ساتھ چادروں سے بنی رسی کو بندھے ہوئے دیکھ لیا۔ اس پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سنگرام کہنے لگا، وہ بھاگ گئی۔ دیوداس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، مسہری پر بیٹھ گیا، کچھ دیر گہری سوچوں میں رہا، پھر کھڑکی کے پاس آیا۔ مسہری کے پائے کے ساتھ بندھی چادریں نیچے زمین تک چلی گئی تھی۔ یہ سارا معاملہ دیکھتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں سنگرام کو مخاطب کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، بھائی، یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے حماقت کی کہ اس کے لیے بستر کی بہت سی چادریں لے آیا، اس کے لیے بہت سارے کپڑے اور زیورات بھی لے کر آیا۔ ہر چیز مسہری پر پڑی ہوئی ہے، صرف چادروں کو اس نے استعمال کیا اور انہیں پھاڑ پھاڑ کر رسی کی صورت دے کر یہاں سے بھاگ گئی، پر وہ ہم سے بچے گی نہیں۔ بھائی چلو حویلی سے باہر چلتے ہیں، اس کے پاؤں کے نشانات سے دیکھتے ہیں کہ کدھر گئی ہے۔ ابھی وہ یہی کہیں ہوگی، اس کے پاس سواری نہیں ہے، کہیں چھپ کر اپنے باپ کی طرف پیغام بھجوائے گی، تب یہاں سے نکلنے پائے گی، ورنہ اس کے لیے یہاں سے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں۔ اس کے لیے اس وقت مسلمانوں کا لشکر بھی یہاں نہیں، ورنہ میرے اندازے کے مطابق یہاں سے نکل کر وہ سیدھی ایبا کے پاس چلی جاتی۔ سنگرام نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد دونوں بڑی تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ رامداس ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ حویلی سے باہر نکلے، تینوں حویلی کے پشتی حصے کی طرف گئے، جس طرف کھڑکی تھی جہاں سے کمار دیوی بھاگی تھی۔ کھڑکی کے نیچے پہلے وہ کمار دیوی کے جوتوں کے نشانات کو غور سے دیکھتے رہے۔ ان نشانات کی کھوج اور رہنمائی میں وہ آہستہ آہستہ نشانات دیکھتے ہوئے دریائے سرسوتی کا رخ کر رہے تھے۔ دریائے سرسوتی کے کنارے جا کر سنگرام رک گیا اور دیوداس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیوداس، یہاں تک کمار دیوی جوتے پہن کر آئی ہے،
यहाँ आकर उसने अपने जूते उतार लिए हैं, इसलिए कि तुमने देखा कि उसके नंगे पांव के निशानात लगे हुए हैं। इसके बाद वो नंगे पांव ही पानी में दाखिल हो गई है। जिस जगह से वो दरिया में दाखिल हुई है, यहाँ से दरिया को अबूर करना आसान नहीं। यहाँ दाएं बाएं करीब कतन भी नहीं है। इस जगह से दरिया उसके हिस्से से इतना गहरा है कि दो आदमी भी नीचे ऊपर खड़े हों तब भी डूब मरे। अब इसकी इस तरह पांव से जूता उतार कर दरिया में दाखिल होने से दो नतीजे सामने आते हैं। अव्वल के दरिया के किनारे किनारे ही चलती हुई कहीं आगे चली गई होगी, लेकिन वो दूर नहीं जा सकती। जिस तरह यहाँ किनारे जमीन के बराबर हमवार है, आगे मामला ऐसा नहीं है। आगे किनारे कट्टा फट्टा भी है और ऊंचा ऊंचा भी है। वहां दरिया के अंदर वो इस तरह नंगे पांव नहीं चल सकती। कई मकामात पर उसे दरिया से बाहर निकल कर चलना पड़ेगा। लिहाजा इसके पांव के निशानात से हम देख सकते हैं कि वो किधर गई है। दूसरा मामला ये भी हो सकता है कि वो सीधी दरिया के उसी हिस्से की तरफ गई हो और वहां डूब कर उसने खुदकुशी कर ली हो। यहाँ तक कहने के बाद संग्राम रुका, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, देवदास मेरे भाई, उसने बज़ाहिर तुमसे अपनी खुशी और रजामंदी से शादी करने का ऐलान किया था, लेकिन वो तुमसे मोहलत चाहती थी। 2 दिन की उसने मोहलत मांगी थी और 2 दिन की मोहलत के दौरान देख लो उसने अपना काम कर दिखाया, भाग गई। अब अगर तू वो दरिया में कूद कर मरी है तो उसका तो कोई हल ही नहीं। इस किस्से को दफा करो। अब एक बात हमारे सामने बाकी रहती है, वो ये कि दरिया के किनारे किनारे जुनूब की तरफ जाते हैं। दरिया के ऊंचे और कटे फट्टे साहिल तक उसके पांव के निशानात देखते हैं। अगर वहां भी उसके पांव के निशानात ना हुए तो फिर लाजिम है कि वो खुदकुशी कर गई है, डूब मरी है। अब हम जुनूब की तरफ जाते हैं। देवदास मुंह से कुछ ना बोला, चुपचाप संग्राम के साथ खो लिया। रामदास भी उनके साथ था। कुछ देर तक वो जुनूब की तरफ चलते रहे, यहाँ तक कि दरिया के किनारे बुलंद हो गए और किनारों के साथ पानी इतना गहरा था कि उसके अंदर चलना मुश्किल था। वहां वो किनारे के साथ साथ चंद कदम आगे गए थे। कुमार देवी के पांव के निशानात ढूंढते रहे, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी ना मिला। एक जगह जहां किनारे बहुत बुलंद था, संग्राम खड़ा हो गया और देवदास को मुखातब करके कहने लगा, देवदास वो जुनूब की तरफ नहीं आई, ना ही वो दरिया के किनारे किनारे सफर करते हुए कहीं छुपी है। गालिब गुमान यही है कि दरिया में डूबकर खुदकुशी कर गई है। संग्राम जब खामोश हुआ तब अपने खदशात का इजहार करते हुए देवदास कहने लगा, हो सकता है वो ना ही डूब कर मरी हो, ये भी तो मुमकिन है कि वो अच्छी तैराक हो, दरिया को तैर कर दूसरे किनारे की तरफ चली गई हो। ये जो सामने माहीगीरों की बस्ती या आसपास कहीं और उसने पनाह ली हो। संग्राम मुस्कुराया और कहने लगा, अगर उसने माहीगीरों की बस्ती में पनाह ली होती तो अब तक हमें कोई ना कोई बता चुका होता कि वो भाग कर पनाह ले गई है। इसलिए कि वो सारे मल्ला हमारे जानने वाले हैं और फिर उनका ठाकुर बहुत अच्छा इंसान है। बाबा के अलावा मेरे साथ भी उसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं और फिर ऐसा शख्स है कि इस किस्म के बखेड़े में पड़ने वाला नहीं। अगर तुम इत्मीनान चाहते हो तो वहां जाकर भी बात कर लेते हैं। इसके बाद वो शुमाल की तरफ गए। एक जगह संग्राम रुक गया। दूसरे किनारे पर जो माहीगीरों की कश्तियां खड़ी थी, ऊंची आवाज में उन्हें पुकारते हुए संग्राम ने उन्हें अपनी तरफ एक कश्ती भेजने के लिए कहा। जवाब में कश्ती बड़ी तेजी से उनकी तरफ आई। कश्ती का मल्लाह जब कश्ती के किनारे पर लाया तो संग्राम उस कश्ती में बैठते हुए कहने लगा, जरा हम तीनों को अपने ठाकुर भगवान दास के पास लेकर चलो। संग्राम के साथ साथ देवदास और रामदास भी कश्ती में बैठे। इसके बाद मल्लाह कश्ती को हरकत में लाया और भगवान दास की बस्तियों की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ दरिया सरस्वती के दाएं किनारे किनारे उसके साथ जो माहीगीरों की कश्तियां खड़ी थी, उनके अंदर इस वक्त भगवान दास भी अपनी बीवी और बेटी के साथ बैठा हुआ था। इसलिए कि उस वक्त सारे माहीगीरों अपनी अपनी कश्तियों को हरकत में लाते हुए दरिया के उसी हिस्से की तरफ। दूसरी तरफ दरिया सरस्वती के दाएं किनारे किनारे उसके साथ जो माहीगीरों की कश्तियां खड़ी थी, उनके अंदर उस वक्त भगवान दास भी अपनी बीवी और बेटी के साथ बैठा हुआ था। इसलिए कि उस वक्त सारे माहीगीर अपनी अपनी कश्तियों को हरकत में लाते हुए दरिया के उस हिस्से की तरफ जाने के लिए तैयार थे, ताकि वहां जाल बिछा सके और मछलियां पकड़ने के लिए कांटे लगी लंबी लंबी रस्सियां फैला सके। भगवान दास ने भी संग्राम के साथ रामदास और देवदास को अपनी तरफ आते हुए देख लिया। इस मौके पर धीमे से लहजे में अपनी बेटी किरण कुमारी को मुखातब करके कहने लगा, किरण कुमारी मेरी बच्ची भाग कर घर जा। 2 मकान को हम बाहर से कुफल लगाकर आए हैं, इसके बावजूद कुफल खोल और कुमार देवी से कहना तू शक खाने में तो शकों और लाहफजों के नीचे छुप जाए। ऐसा करने के बाद तुम पहले की तरह मकान को बाहर से कुफल लगाकर यही लौट आओ और उन लोगों की आमद से पहले पहले आ जाना। अपने बाप की इस हिदायत पर किरण कुमारी बड़ी तेजी से कश्ती से निकली। मुख्तलिफ कश्तियों की ओर लेते हुए बस्ती में दाखिल हुई। अपने घर के सदर दरवाजे का बाहर से कुफल खोला। अंदर एक कमरे में कुमार देवी बैठी हुई थी। उसे मुखातब करके किरण कुमारी कहने लगी,
कुमार देवी, मेरी बहन तुम्हें तलाश करते हुए देवदास और संग्राम इस तरफ आ रहे हैं। साथ वाले तोशक खाने में बिल्कुल लिहाफजों के नीचे चली जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आई थी। मैं फिर जाने लगी हूँ और मकान के बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी। प्रेम कुमार के अल्फाज पर कुछ कुमार देवी परेशान हो गई थी। जवाब में उसने कुछ भी ना कहा। तोशक खाने की तरफ भागी थी, लिहाफों के नीचे छुप गई थी। किरण कुमारी मुतमईन होने के बाद पलटी, मकान के बाहर से कुफ लगाया और फिर दोबारा अपने बाप के पास जाकर कश्ती पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद संग्राम, देवदास और रामदास भी वहां पहुंच गए। भगवान दास ने कश्ती से उठकर उनका इस्तकबाल किया। तीनों कश्ती से निकलकर भगवान दास की कश्ती में आए। भगवान दास तीनों से गले मिला, फिर खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, लगता है आज मछलियां लेने हमारी बस्ती की तरफ आए हैं। जवाब में संग्राम कहने लगा, नहीं ठाकुर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारी एक लड़की हमारी हवेली से भाग गई है। अब इससे मुताल्लिक खबर नहीं वो दरिया में कूद मरी है या आपकी बस्ती की तरफ आई है। मैंने अपने फूफीजाद देवदास से कहा है कि अगर वो भगवान दास की बस्ती की तरफ आई होती तो अब तक हमें खबर हो चुकी होती। अब यूं जाने उस लड़की को ढूंढते और तलाश करते आपकी तरफ आए हैं। संग्राम जब खामोश हुआ तब बड़ी लजाजत और आजिजी में भगवान दास कहने लगा, संग्राम, तुम्हारी हैसियत मेरे यहाँ बेटों सी है। तुम्हारे बाप से भी मेरे गहरे ताल्लुकात है। क्या तुम ये तवक्कुर रखते हो कि तुम्हारी कोई लड़की भागी तो उसे हम अपने यहाँ बना देंगे? इसके बावजूद अगर तुम हम पर शक करते हो तो तुम हमारे साथ चलो। सारी बस्ती के मकानों के दरवाजे खोल देता हूँ। सारे मकानों की तलाशी ले लो। अगर लड़की यहाँ से मिले तो जो सजा तुम मेरे लिए तजवीज़ करोगे तस्लीम कर लूंगा। सबसे पहला मेरा घर की तरफ चलो। मैं अपने घर का दरवाजा खोलता हूँ। मेरे मकान की पहली तलाशी लो, बाकी बस्ती के मकानों की तलाशी लेना। इसके साथ ही अपनी बेटी किरण कुमारी की तरफ देखते हुए भगवान दास कहने लगा, बेटी, मकान की बैरूनी दरवाजे पर जो कुफ लगा है उसकी चाबी मुझे दो। अपनी बेटी की तरफ बढ़े हुए भगवान दास का हाथ संग्राम ने रोक दिया। कहने लगा, भगवान दास, ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या मैं आपकी बस्तियों के मकानों की तलाशी लूंगा? जो कुछ आपने कहा यह हमारे लिए हरफ आखिर है। मैं जानता हूँ लड़की अगर आपकी बस्ती में होती तो यकीनन आप हमें इसकी इत्तला दे देते। बहरहाल मैं अपने फूफीजाद और रामदास के साथ वापस जाता हूँ और जाते जाते आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आज नहीं या कल या किसी वक्त कोई लड़की आपकी बस्ती या वो नवाह में कहीं पना ले और दिखाई दे तो उसकी इत्तला हमें जरूर कीजिएगा। भगवान दास ने जब छाती तनते हुए इसका इकरार किया तब संग्राम अपनी कश्ती में चला गया। उसकी तरफ देखते हुए देवदास और रामदास भी उसकी कश्ती में मुंतकिल हो गए। उसके साथ ही जो मल्ला उन्हें लेकर आया तब वो उन्हें दूसरे किनारे छोड़ने के लिए कश्ती को हरकत में ले आया। कश्ती जब दरिया सरस्वती के जरा आगे गई तब देवदास संग्राम को मुखातब करते हुए कहने लगा, भाई, कुमार देवी का इस तरह भागना और हमारे हाथों से बचकर निकल जाना यकीनन हमारे लिए बात से जिल्लत और लानत है। मेरा दिल कहता है कि वो अभी नहर वाला की तरफ नहीं भागी, इसलिए कि उसके पास ना कोई सवारी है ना उसके पास रकम है और इन दोनों चीजों के बगैर नहर वाला की तरफ भाग नहीं जा सकता। मेरा दिल कहता है कि वो यहाँ इन्हीं इलाकों में कहीं छुपी बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आदमियों में से कोई उसका साथ दे रहा हो और भागने में उसकी मदद कर रहा हो। देवदास की इस गुफ्तगू के जवाब में संग्राम ने कुछ सोचा, फिर घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, देवदास, मेरे भाई, हमने आज तक रामदास के अलावा किसी को कुमार देवी के पास जाने नहीं दिया और रामदास वो शख्स है जिस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा और एतमाद किया जा सकता है। और फिर यह बात भी अपनी जगह पर वाज़ेह कि वो उसे खाना खिलाने के बाद साथ वाले कमरे को बाहर से कुफ्र लगाने के बाद चला गया था और अगले रोज जब कुफ्र खोल कर देखा गया तो कुमार देवी गायब थी। अगर कुमार देवी साथ वाले कमरे का दरवाजा खोलकर भागती तो फिर यह बात साबित थी कि रामदास उसका साथ दे रहा है, लेकिन चूंकि दरवाजा मुकम्मिफ था और कुमार देवी खिड़की के दरवाजे के नीचे उतरकर भागने में कामयाब हो गई तो बात बिल्कुल साफ और आया है कि उसमें ना रामदास मुलव्विस है और ना उसका कसूर है। मैं समझता हूँ कुमार देवी सिर्फ तुम्हारी हिमाकत की वजह से भागने में कामयाब हुई। देवदास ने चौंकने के अंदाज में संग्राम की तरफ देखा, फिर पूछ लिया, वो कैसे मेरे भाई? वो इस तरह कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि तुमने जो उसे इस्तेमाल के लिए कपड़े मुहैया किए थे उनमें से तुम उसे बहुत से बिस्तर की चादरें भी लेकर जाओ। तुमने देखा उन्हीं बिस्तरों की चादरों से काम लेते हुए उसने अपने भागने के अमल को आसान बना दिया। चादरें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे से गांठ लगाते हुए उसने उन्हें एक लंबे रस्से की शक्ल दी और फिर अपने मुसहरी के पाए से उसका एक सिरा बांध कर दूसरे हिस्से से भाग निकली। अब तुम खुद सोचो इसमें किसका कसूर है? संग्राम के अल्फाज के जवाब में देवदास की गर्दन थोड़ी देर के लिए झुकी, फिर शर्मिंदगी के एहसास में कहने लगा, भाई, तुम्हारा कहना तो दुरुस्त है, भागी तो मेरी हिमाकत ही की वजह से है। मुझे इसके पास वो सारी बिस्तर की चादरें नहीं रखनी चाहिए थी।
یہ ایسا تو میں نے اس کی خوشی خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اور پھر بھائی مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اندر ہی اندر کیا منصوبے بندی کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ 2 دن بعد وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ اس بنا پر میں بھی اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنے لگا تھا، اس لیے میں اس کے لیے نئے نئے کپڑے اور بستر کی چادریں لے کر آیا تھا، اور انہی چادروں کو کام میں لاتے ہوئے بھاگ گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیوداس رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بھائی ایک بات ہے، اسے نہر والا کی طرف بھاگنے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہی کہی ہے، اگر ان مچھروں کی بستی میں نہیں ہے تو آس پاس کے علاقوں میں کہیں نہ کہیں وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کا یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ بھاگنے سے پہلے اس نے کسی منصوبہ بندی بھی نہیں کی، اس لیے کہ یہاں کسی کا آنا جانا ہی نہیں تھا۔ میرے خیال میں وہ بھاگ کر کسی آس پاس کی بستی میں داخل ہوئی اور منت سماجت کی ہوگی کہ وہ ایک مظلوم اور بے بس لڑکی ہے، اسے پناہ دی جائے۔ میرے خیال میں وہاں قیام کر کے کسی نہ کسی طرح نہر والا میں اپنے باپ کو اطلاع بھیجے گی اور پھر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گی۔ بھائی میں چاہتا تھا کہ اس دوران تک نہر والا کی طرف جانے والے سارے راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے، ساتھ ہی اپنے کچھ آدمیوں کو مقرر کیا جائے جو آس پاس کی بستیوں کے چکر لگاتے رہے اور لوگوں سے پوچھتے رہے کہ ان کی بستی میں کوئی نئی لڑکی تو داخل نہیں ہوئی۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ ہم کمار دیوی کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سنگرام نے دیوداس کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اتنی دیر تک کنارے بھی آ گیا تھا، لہٰذا دونوں کشتی سے اتر کر خاموشی کے ساتھ اپنی قیامگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ دیوداس اور سنگرام کے جانے کے بعد بھگوان داس نے اپنی بیٹی کرن کماری کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹا اب تو گھر جا، تیرا جلدی جانا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر تو گھر نہ گئی تو راجکماری تو شوقوں کے تلے ہی دب کر رہ جائے گی۔ جا میری بیٹی، اسے جا کر نکال اور پھر تو گھر ہی پر رہنا، کھانے کا اہتمام کرنا، ہم کام نمٹا کر آ جائیں گے۔ اپنے باپ بھگوان داس کے کہنے پر کرن کماری کنارے پر اتری، پھر وہ تیز تیز چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف ہو لی۔ اس نے قفل کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد سب سے پہلے دروازے کو اندر سے زنجیر لگائی، پھر اندر گئی اور دھیمے سے لہجے میں اس نے کمار دیوی کو پکارا۔ کمار دیوی تو شکوں کے نیچے سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی، سینے سے انداز میں کرن کماری کے پاس آئی، پھر تقریباً ہکلاتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ دونوں اپاش اور بدماش چلے گئے۔ کرن کماری آگے بڑھی، بڑے پیارے انداز میں اس نے کمار دیوی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر کہنے لگی، میری عزیز بہن، تو اتنی پریشان اور فکر مند کیوں ہے؟ جب تک تو یہاں ہے ہمارے یہاں بالکل محفوظ ہے۔ بابا سے گفتگو کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے ہیں، اس لیے کہ بابا نے انہیں پوری طرح مطمئن کر دیا تھا کہ راجکماری ہماری بستی میں آئی ہی نہیں۔ یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر کسی موقع پر راجکماری نے ادھر کا رخ کیا تو انہیں باقاعدہ اطلاع دی جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن کماری جب خاموش ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کمار دیوی کی گردن جھکی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہی تھی۔ کمار دیوی نے اس کے دونوں شانوں سے پکڑا، ہلکا سے جھٹکا دیتے ہوئے پوچھ لیا، اب میری بہن کہاں کھو گئی؟ کمار دیوی بڑی سنجیدہ، غمزدہ اور ملول سی تھی، کہنے لگی، کرن کماری، تمہارے باپ آج آئے تو ان سے میں ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کروں گی۔ تم لوگوں نے جو مجھے یہاں اپنے ہاتھ پناہ دی ہے، کہیں موقع ملا تو اس کا احسان کا بدلہ بہترین انداز میں چکاؤں گی۔ اور اس کے آگے کمار دیوی کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ اس کی گردن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی، بدلہ چکانے کی بات بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ بابا سے تم کس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہو؟ کمار دیوی نے غور سے لمحے بھر کے لیے کرن کماری کی طرف دیکھا، پھر دھوپ بڑے انداز میں کہہ رہی تھی، کرن کماری، تم مجھے بہن کہتی ہو، بہن کی حیثیت سے میں کوئی بات تم سے چھپاؤں گی نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں ان ظالموں اور اوپاشوں کی چنگل سے بھاگ کر یہاں آ تو گئی ہوں، یہ میری خوش بختی ہے کہ یہاں مجھے پناہ مل گئی۔ اب یہ دیوداس اور اس کا ماموزاد سنگرام دونوں چھٹے ہوئے اپاش ہیں۔ میرے خیال میں یہ ارد گرد کے سارے علاقوں اور راستوں پر اپنے آدمی مقرر کر دیں گے تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ وہ ہر صورت میں مجھے پکڑنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ان دنوں میرا یہاں سے نکلنا اور کہیں روانہ ہونا انتہائی خطرناک ہوگا۔ میں تمہارے باپ سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے چند ہفتے یہی اپنے یہاں قیام کرنے دے۔ اسی دوران ہو سکتا ہے حالات میرے حق میں پلٹا کھا جائیں اور میرے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بن جائے، اس لیے کہ دیوداس اور سنگرام کا خادم رامداس پوری طرح میرا ساتھ دے رہا ہے، اور اس نے مجھے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے یہاں محفوظ کرنے کے بعد وہ یا تو ایبا کو اس کی اطلاع کرے گا یا نہر والا میں میرے ماں باپ کو میری اس مصیبت کی آگاہی دے گا۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب گھورنے کے انداز میں کرن کماری کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر شکوے بھرے انداز میں کہنے لگی، کمار دیوی میری بہن، یہ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہو؟ بہن بھی کہتی ہو اور اجنبی پن کی باتیں بھی کرتی ہو۔ تمہیں اس موضوع پر بابا سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ایک بات یاد رکھنا، جب تک تمہیں یہاں سے محفوظ طریقے سے نکالنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا اس وقت تک بابا تمہیں خود بھی یہاں سے نہ جانے دیں گے، نہ نکلنے دیں گے۔ تم نے کیا اپنے من میں بات بٹا لی ہوگی کہ ہم تمہیں اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے؟ میری بہن، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا گھر تمہارا اپنا گھر ہے۔ جب تک تم یہاں قیام کرو گی ہم اپنے لیے باعث رحمت اور فخر خیال کریں گے۔ دیکھو، جب تک حالات پوری طرح تمہارے محفوظ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم خود تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اور میرا من یہ بھی کہتا ہے کہ چونکہ اس دیوداس اور سنگرام میں تمہیں تمہارے ماتا پتا، بھائی اور دیگر رشتہ داروں سے زبردستی جدا کیا ہے، تم پر ظلم ڈھایا ہے، لہٰذا انہیں ان کے پاپ اور مظالم کی سزا ضرور ملے گی۔ ویسے رامداس کہہ رہا تھا کہ پہلے تمہیں یہاں سے نکالنے کا محفوظ راستہ بنائے گا، احبا سے رابطہ قائم کرے گا۔ تمہارے خیال میں کیا وہ شخص تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ دیوداس اور سنگرام سے انتقام لینے پر بھی راضی ہو جائے گا؟ کرن کماری کے الفاظ پر راجکماری کمار دیوی ایک دم اور زیادہ افسردہ اور اداس ہو گئی تھی۔ فضا میں اس کی طرح گھرنے لگی تھی جیسے کہ وہ انجانے خیالات میں کھو کر رہ گئی ہو۔ پھر عجیب سے لہجے، عجیب سے انداز میں کرن کماری کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، کرن کماری میری بہن، احبا ہم جیسا نہیں ہے، مجھ سے ہی اس کے حق میں کچھ زیادتیاں ہوئی ہے۔ میری بہن وہ بڑے بڑے سرماؤں کے سامنے جھکنے کی بجائے ان کی نظر میں موت کی سراب بھر دینے کا ہنر جانتا ہے۔ کڑی مسافت اور بلا کا سرسر اور سموم بن کر اپنے دشمنوں کے لوح احساس پر اپنی کابی کی لیے نقش کندہ کرنے کی سنائی بھی جانتا ہے۔ وہ بے روک کردات کی شورش اور تلاطیم اور طغیانیہ کے جوش مارتے بہر بے کراں جیسا شجاع، رگوں میں مرگ کے کھول دینے والے زہر لگے نیزے کی امی جیسا ناقابل تسخیر، آنکھوں میں نوکیلے کانٹے بو دینے والی آندھیوں جیسا دلیر اور قرب کھڑی کرتے طوفانوں جیسا جرأت مند ہے۔ مجھ سے ناراضگی کے بعد کئی موقع پر وہ چاہتا تھا کہ مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایک موقع پر جنگ کے دوران اس نے تیر میرے گھوڑے کے دونوں کانوں کے پار کر دیے تھے۔ ایک تیر میرے بازو پر بھی پست ہو گیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اپنے تینوں تیر میرے شریر کے اندر ڈال کر مجھے ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس کی شرافت، اس کی نرمی کی ایک نشانی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی موقع پر میرے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی۔ میں نے ہی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ وہ صداقتوں کے امیر اور رجائے شب میں چمکتے ستاروں جیسا صاف دل، شفاف میٹھے تخلیات اور راحت کے جاویدہ لمحوں جیسا نرم، زندگی کے جمال کی حرارت اور نغموں کی صدائی جیسا بے سرر ہے۔ وہ میری بدبختی ہے کہ جس نے قدم قدم پر اس کی زندگی میں کھٹنائیاں پیدا کی، اس کی نظر میں نفرت کی چراغ روشن کی اور اس کے نفس میں بے وفائی کی باز بھر کر رکھ دی۔ کرن کماری میری بہن، وہ ایک اچھا ستھرا نرم دل انسان ہے۔ کاش میں نے اس کی زندگی کو ویران اور بے کیف نہ بنایا ہوتا۔ کاش میں نے تاریکی اور بدبختی میں اس کا مقدر بنانے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ کاش میں نے اس کی روح میں نفرت کی سلکاہٹ کھڑی نہ کی ہوتی۔ کاش میں نے اس کی عظیمت اور سربلندی کو گرانے کا گھنونا کردار ادا نہ کیا ہوتا۔ میں نے اسے رنج و غم کا کھلونا، پامال، ثمر اور رونتا ہوا پھول سمجھ کر اسے انسانیت سے گرا ہوا سلوک کیا، اسے اچھوت جان کر اسے اچھوتوں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، سسک پڑی تھی، پھر ہلکی ہلکی ہچکچیاں میں وہ کہہ رہی تھی، کاش میں نے اس کی روح کی پاکیزگی، اس کے جسم کی طہارت کو مقاصد کی ذلت اور پستی اور تمناؤں کی گندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ اس سے آگے کمار دیوی کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر ہچکچیوں اور سسکیوں میں رونے لگی تھی۔ اس موقع پر کرن کماری نے اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا، تھوڑی دیر تک اسے دھراس دیتی رہی، سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر کمار دیوی نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی آنکھیں خشک کر لی۔ پھر کرن کماری نے اسے مخاطب کیا، تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے ساتھ لپٹائے کرن کماری اسے دوسرے کمرے میں لے گئی، ایک مشہری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اب تم یہاں لیٹ جاؤ، بالکل آرام کرو، میں رسوئی میں جاتی ہوں اور کھانا تیار کرتی ہوں۔ اتنی دیر تک بابا اور اماں بھی آ جائیں گے، پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ اس موقع پر راجکماری کمار دیوی جواب میں اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال چکی تھی۔ کرن کماری کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، اب تک تم نے مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم مجھے بہن بھی کہتے اور کام کرنے سے بھی روکتی ہو۔ اب میری حیثیت اس گھر کی ایک فرد سی ہے، لہٰذا دونوں بہنیں مل کر گھر کے سارے کام کیا کریں گے۔ اگر اس سلسلے میں
तुम ने मुझसे रोकने की कोशिश की तो मैं यही समझूंगी कि तुम मुझे इस घर में अजनबी और मेहमान ख्याल करती हो। कुमार देवी की इस गुफ्तगू पर किरण कुमारी ने हल्का सा कहकहा लगाया और कहने लगी, मेरी बहन, ना मैंने तुम्हें अजनबी समझती हूँ ना मेहमान। मैं तो तुम्हें सुख, राहत और आराम देना चाहती थी। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो फिर आओ, दोनों बहनें रसोई की तरफ चलते हैं। किरण कुमारी के अल्फाज पर कुमार देवी भी खुश हो गई थी। फिर दोनों हाथ में हाथ डाले खाना तैयार करने लगे, रसोई की तरफ हो रहे थे। फराइन के मैदानों में हिंदुस्तान के सारे राजाओं के मुत्तहिक ताकत और कुव्वत को बदतरीन शिकस्त देने के बाद चंद रोज तक सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने उसी मैदान के अंदर क़याम किए रखा। यहाँ मुर्रिखीन का इख्तलाफ है कि कुछ कहते हैं कि तराइन के मैदान सरहिंद शहर के करीब थे, दूसरे कहते हैं कि बीडहम शहर के करीब था। बहरहाल यहाँ चंद रोज तक अपने लश्कर के साथ क़याम करने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ फिर पेशकदमी शुरू की। अब उसने अजमेर शहर का रुख किया। अजमेर शहर का राजा पृथ्वीराज तो जंग के दौरान फरार होते हुए पकड़ा गया था और बाद में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने उसका सर कलम कर दिया। अब अजमेर का राजा पृथ्वीराज का बेटा राजा गोला हुक्मरान था। दूसरी तरफ दहली का राजा भी बदतरीन तराइन के जंग में काम आ चुका था और ये पृथ्वीराज का भाई था और दहली में भी उसके अजीज और कारिब हुकूमत कर रहे थे। बहरहाल तराइन के मैदानों से निकलकर सुल्तान ने अजमेर का रुख किया। अजमेर के राजा पृथ्वीराज का मरकजी शहर था और यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार भी है। ये शहर 1100 ईस्वी में आबाद किया गया। 1192 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने इसे फतह किया और 95 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। 1358 ईस्वी से ये राजपूतों के कब्जे में रहा और 1455 ईस्वी से 1531 तक मालोह की सलातीन के कब्जे में यह शहर रहा। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने इब्तिदाई में इस शहर को अपनी सल्तनत में शामिल किया था और वो अक्सर बेशतर अजमेर आया जाता था। 1721 ईस्वी में उस शहर पर भी हिंदू राजपूतों ने दोबारा कब्जा कर लिया। राजपूतों के बाद ये शहर मराठों के कब्जे में चला गया, जिन्होंने 1818 ईस्वी में ये शहर खुद अंग्रेजों के हवाले कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार 1455 ईस्वी में मालहू के सुल्तानों ने तामीर कराया था। बाद अज़ा अकबर और शाहजहां ने भी मजीद तामीरें की। खुसूसियत के साथ वहाँ 2 मस्जिदें अहद मुगलिया की यादगार है। इमारत हिंदुआना तर्ज पर तामीर की गई है और इसमें एक चौकोर सहन है जिसके चारों तरफ हिंदुस्तानी तर्ज की छत और गुलाम गद्दीशें हैं। चारों कोनों पर सितारे की शक्ल की 4 बुर्ज है। एक सुतून भी है जो 458 फीट लंबा 40 फीट चौड़ा है। अजमेर की तारीख इमारतों में एक अकबर का किला बंद महल है, दूसरा नूरुद्दीन जहांगीर का बनाया हुआ एक बाग और तीसरा शहाबुद्दीन शाहजहां का तामीर करदा एक पुश्ता है। ज्यादातर इमारतें हिंदुआना तर्ज की तामीर शुदा नजर आती है, ताहम कई इमारतें इस्लामी तामीरात की इम्तिजाज का भी बेहतरीन नमूना पेश करती है। इस शहर के बाजार सीधे और कुशादा थे। शहर से कुछ फासले पर छोटी सी खूबसूरत झील भी बनाई गई थी। आसार कदीमा के नुक्ता निगाह से अजमेर की सबसे अहम इमारत ढाई दिन का झोपड़ा कहलाती है, जो दरअसल एक कदीम दरसगाह थी जिसे बाद में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसकी तामीर दिल्ली के कुतुब मीनार और मस्जिद कुव्वत इस्लाम से मिलती जुलती थी। बहरहाल सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से अजमेर शहर का रुख किया। दूसरी तरफ राजा पृथ्वीराज के बेटे गोला को खबर हुई कि मुसलमानों का सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी बड़ी तेजी से अपने लश्कर के साथ अजमेर का रुख किए हुए है। तब उस पर खौफ और वहशत तारी हो गई। उसे खबर तो पहुंच चुकी थी कि उसका बाप पृथ्वीराज तराइन के मैदानों में मारा जा चुका है। उसे यह भी खबर पहुंचा दी गई थी कि उसका चाचा गोविंद राय जो दिल्ली का राजा था वो भी मारा जा चुका है। इन सारे खबरों ने उस पर यह वाज़ेह कर दिया था कि जिस कदर बड़ी ताकत रख ले सुल्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसके जहन में ये बात भी थी कि तराइन के मैदानों में हिंदुस्तान के सारे राजाओं ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए शहाबुद्दीन पर ज़रब लगाई थी, लेकिन सबको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लिहाजा शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ जब अजमेर के करीब पहुंचा तब राजा गोला अजमेर की उमरा अपनी सल्तनत के सरकर्दा लोगों और लश्कर के सारे बच्चे कुचे सालारों के साथ शहर से बाहर निकला। बड़े पुरजोश अंदाज में उसने सुल्तान शहाबुद्दीन का इस्तकबाल किया और इंतहाई कीमती तहरीफ भी सुल्तान की खिदमत में पेश की। राजा गोला जब सुल्तान शहाबुद्दीन के सामने आया और सुल्तान की खिदमत में तहरीफ पेश की तो उस वक्त सुल्तान के सारे सालार उसके पास मौजूद थे। उस मौके पर राजा गोला बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से सुल्तान को मुखातब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं किसी भी सूरत में आपके मुकाबले आने की जरूरत नहीं कर सकता।
اس موقع پر میری آپ سے التماس ہے کہ آپ مجھے اجمیر کی حماقت پر بحال رکھنے دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا آپ کا مٹی اور فرمانبردار بن کر رہوں گا۔ راجہ گولا کے الفاظ پر سلطان نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارا باپ ایک غیر ذمہ دار انسان تھا۔ اس نے نہ صرف میرے سفیر بلکہ میری دین کی بھی تصدیق کی جو اسے زیب نہ دیتی تھی۔ ترائن کی پہلی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی نظروں کو عامہ جاگہ میں حقیقت حال کی تجسس کے بجائے توہین اور ہتک امیز رویے بسا لیے تھے۔ اپنی فکر اور ارادی قوتوں کی تاریکی جیسے بے انت تہ خانوں کا خون بنا لیا تھا اور بے بنیاد طور پر وہموں کی گنجو استبداد کی تنگی اور نفرت کی آتش فشانی کو اپنی ذات کا ملجا و ماوا سمجھنے لگا تھا، حتیٰ کہ اپنے شعور کی تنبیہ اور تقدیر کی گرفت کو فراموش کرتے ہوئے پریم وسوسوں کے جلو اور راگ و رنگ کے آشرم کو اپنی منزل سمجھ بیٹھا۔ مجھے اپنے ٹھکانوں سے دور کسی آوارہ بگولے، آسمان سے ٹوٹے ہوئے ستارے، سورج کی کھوئی ہوئی کرن، مرکز سے دور بے چین روح سے زیادہ اہمیت نہ دیتا تھا۔ تم اپنے آپ کو اس میں سختی غرض کا بندہ بنا کر لیا تھا اور اس میں ہر چیز کو فراموش کرتے ہوئے کی حماقت کی بارش رکھتا ہوں۔ ستم کی آگ ساتھ ہی تمہیں گزرنگ اگر کسی موقع علاوہ سرکشی کرنے کا عزم کر لیا تھا، ہمارے خلاف بے قرار بغاوت کھڑی کرنے کا ضرور اپنی انتہا کو پہنچ یاد رکھنا، اپنے بادروں طرح جان سے ہاتھ دو بلا مٹ کر کے رکھ دیا۔ سلطان شاہ جلنے اور شیطرہ ترہی کی طرف بڑی عاجزی اور انکساری میں قوت اور طاقت مخالفت اور دھیمت بن کر راجہ گولا کہہ رہا تھا۔ اپنی لشکر میں شامل 3000 آتے اپنے سے بڑا بھروسہ کسی بھی موقع پر ہمارے لشکر کو روند کر رکھ دیں گے۔ باپ جیسا کہ اس کا اور اس کے بھائی بھائی کا شاید انجام ہوا کریں گے۔ اس کی خبروں کے میدانوں میں جانے سے پہلے اس موقع پر باپ کو مشورہ دے دیا بزور کہ ہمیں آپ سوال کرنا چاہیے اور درمیان اور بیچ کا کوئی راستہ نکال لینا چاہیے اور ہمیں ہندوستان کے سارے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان کے سامنے صف آرا نہیں ہونا چاہیے۔ پر افسوس میرے باپ نے میری بات نہیں مانی، حالانکہ میں نے اسے ایک اچھا مشورہ دیا تھا، لیکن اسے جنگ پر ابھارنے کے لیے بہت سے عوامل تھے۔ ہندوستان کے کئی راجا چاہتے تھے کہ میرا باپ آپ کے مد مقابل آئے، اس لیے کہ انہیں خدشہ تھا کہ آپ کے مقابل میں ان کی طاقت نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ اگر اجمیر مسلمانوں کے ہاتھوں بچ بھی گیا تو ان کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں مسلمانوں کے سامنے ریزہ ہو کر رہ جائے گی۔ اسی بنا پر وہ میرے باپ کو انگیخت کیا کرتے تھے کہ ہندوستان کی ساری طاقت اور قوت کو سلطان کے سامنے لا کر مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال کر باہر کرنا چاہیے۔ سلطان محترم، میں آپ کا مطیع اور فرمانبردار ہوں اور آپ جو بھی خراج میرے لیے مقرر کریں گے اسے باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا۔ سلطان نے راجہ گولا کی اس گفتگو کو پسند کیا، اس پر خراج مقرر کیا۔ چند روز تک سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہی قیام کیا اور اس کے بعد سلطان نے دہلی کا رخ کیا۔ تاریخ کی کتب سے واضح ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں ہندوستان کے فرما رواؤں کا دارالسلطنت ہستانپور ہوا کرتا تھا اور ہندوستان کے دو قدیم قبیلوں یعنی کروت اور پانڈو کا مرکز تھا۔ یہ شہر دریائے گنگا کے کنارے آباد تھا۔ جب گورو اور پانڈو کی مشترکہ فرما روائی میں اتفاق اور اختلاف پیدا ہوا تو پانڈوؤں نے دریائے جمنا کے کنارے اپنے لیے ایک علیحدہ شہر بسا لیا اور اس کا نام اندر پیت رکھا اور اسے اپنا پائے تخت قرار دیا۔ برسوں بعد 440 بکرمی میں راجہ اننت پال ترنور نے اندر پت کے نزدیک دلی نام کا ایک شہر آباد کیا۔ اس کے بعد راجہ رائے پتور نے اسی شہر کے قریب ایک قلعہ اور ایک شہر اپنے نام پر تعمیر کرایا۔ بعد میں قطب الدین ایبک شمس الدین التمش کا مسکن یہی شہر رہا۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنے لیے یہی ایک قلعہ تعمیر کرایا اور یہ بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا۔ ہجری 686 میں قیقباد نے دریائے جمنا کے کنارے کلکھوری نام کا ایک نفیس شہر آباد کر دیا۔ اس کے بعد جلال الدین خلجی نے اپنے لیے ایک شہر کو شک لال اور اللہ الدین خلجی نے کوشک سیری آباد کر دی۔ یہ سب دلی کے آس پاس تھے۔ ان کے بعد غیاث الدین تغلق نے ایک اور شہر کی بنیاد ڈالی جس کا نام اس نے دولت آباد رکھا۔ اس کے بعد فیروز تغلق نے ہجری 755 میں فیروز آباد نام کا شہر بسا ڈالا اور اسے اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو دریائے جمنا سے نہر نکال کر شاداب کیا۔ مبارک شاہ نے مبارک باد بسا دیا۔ ہمایوں نے ہجری 938 میں قلعہ اندر پیت کی مرمت کروا کر اس کا نام دین پناہ رکھا اور اسے اپنی تخت گاہ قرار دیا۔ شیر شاہ سوری نے شہر کو شک سیری کو مٹا کر اسے ویران کر کے ایک اور شہر آباد کر دیا۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے ہجری 953 میں قلعہ سلیم گڑھ تعمیر کرایا۔ اگرچہ ان فرما رواؤں نے الگ الگ بستیاں بسا کر تخت گاہ قرار دی، لیکن بیرونی ممالک میں دہلی ہی کو ہندوستان کا دارالسلطنت سمجھا جاتا تھا۔
دریا جمنا کے کنارے دہلی نام کا یہ شہر شمالی ہند کے شاہی خاندانوں کا پائے تخت رہا۔ کچھ عرصے کے لیے دہلی کے بجائے دولت آباد بھی مرکزی شہر قرار دیا گیا۔ پھر دولت آباد کے علاوہ آگرہ اور لاہور بھی ہندوستان کے مرکزی شہر قرار دیے گئے، یہاں تک کہ شہاب الدین شاہ جہاں نے ہجری 1058 میں دہلی کے نزدیک شاہ جہاں آباد نام کا شہر آباد کیا۔ اس شہر کی آبادی اور رونق اس قدر بڑی کہ پرانے تمام شہر اس میں شامل ہو کر رہ گئے۔ ہجری 1049 کو شاہ جہاں نے ہی دہلی میں ایک نئے قلعے کی بنیاد رکھی جس کے لال قلعہ کا نام دے دیا گیا۔ 1858 میں خاندان مغلیہ کا خاتمے کے ساتھ انگریزوں نے جنگ آزادی کے دوران دہلی کی یادگار عمارت کو شدید نقصان پہنچایا اور دارالسلطنت کلکتہ منتقل کر دیا۔ 1911 میں برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت آخرکار دہلی منتقل ہوا اور نئے شہر کی تعمیر شروع ہوئی جسے پہلے رائے سینا کا نام دے دیا گیا، بعد میں سے نئی دہلی پکارا جانے لگا۔ دہلی کی یادگار عمارتوں میں جامع مسجد، موتی مسجد، قلعہ مسجد، کھڑکی کی مسجد، کوئٹہ کی مسجد، مسجد قطب الدین ایبک، لال قلعہ قطب مینار، مقبرہ کبیر الدین و مقبرہ نظام الدین اولیاء، مقبرہ امیر خسرو دہلوی، مقبرہ نصر الدین چراغ، مقبرہ قطب الدین بختیار کاکی، مقبرہ التمش، مقبرہ ناصر الدین محمود، مقبرہ علاء الدین خلجی، مقبرہ غیاث الدین خلجی، مقبرہ فیروز ادهم خان، مقبرہ عبد الرحمن خان خانہ، مقبرہ ہمایوں قابل ذکر ہے۔ بہرحال سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے فاصلوں کو سمٹتا ہوا جب دہلی کے قریب پہنچا تو ہندوستان کے حکیم گوبند رائے کے مارے جانے کے بعد اس کے خاندان کے وہ افراد جو دہلی کا نظم و نسق چلا رہے تھے وہ سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اجمیر کے راجہ گولیہ کی طرح انہوں نے بھی سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی تحائف پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار بھی کیا اور سلطان کو خراج دینے کا عہد کیا۔ سلطان ان کی اطاعت سے بھی خوش ہوا، دہلی سے بھی اس نے کوچ کیا۔ آخر اس نے لشکر کے ساتھ کوہرام شہر میں قیام کیا۔ کوہرام ان دنوں ایک خاصا بڑا مشہور شہر تھا اور پٹیالہ کے آس پاس تھا۔ یہاں جس وقت سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر لیا تو ایک روز سلطان شہاب الدین قطب الدین ایبا اور دوسرے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ سلطان کچھ مخبر اس کے پاس آئے۔ قریب آ کر انہوں نے بلند آواز میں سلام کہا۔ سلطان اور اس کے سالاروں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ مخبر سلطان کے قریب آئے اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ سلطان نے انہیں پہلے ہی مخاطب کر لیا۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنے لشکر کے ساتھ ترائن کے میدانوں سے نکل کر اجمیر اور دہلی کے راستے یہاں تک سفر کیا ہے۔ کیا ان راستوں میں ہماری موجودگی یا ہماری کوچ کرنے کے بعد کوئی نئی قوت ہمارے خلاف سر اٹھانے کا تہیہ تو نہیں کر رہی؟ اس پر آنے والے ان مخبر میں سے بول اٹھا، سلطان محترم، ترائن کے میدانوں میں سے یہاں تک کوئی قوت ہمارے خلاف سر نہیں اٹھا رہی تھی، تاہم ایک ایسا شخص ہے جس سے مستقبل میں خطرہ پیش آ سکتا ہے اور وہ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا ایک قریبی رشتہ دار ہے، نام اس کا بھیم راج ہے۔ اس وقت وہ ایک خاصا بڑے لشکر کے ساتھ مشرق کے دور دراز کی سرزمینوں میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس کی کیا ارادے ہیں یہ ابھی تک ہم نہیں جان سکے۔ مخبر جب خاموش ہوا تو تجسس امیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے شہاب الدین کہنے لگا، یہ شخص تو نہر والا کا راجہ ہے اور ایک بار اس سے ہم ٹکرا بھی چکے ہیں۔ اس پر مخبر کہنے لگا، سلطان محترم، یہ دو مختلف شخص ہیں۔ نہر والا کے راجہ کا نام بھیم دیو ہے، اجمیر کے مرنے والے راجہ پرتھوی راج کے اس رشتہ دار کا نام بھیم راج ہے۔ ترائن کے میدانوں میں راجہ پرتھوی راج اور دوسرے راجاؤں کے جو لشکری اپنی جانیں بچا کر اور شکست اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے وہ اسی بھیم راج کے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ اس طرح بھیم راج نہ جانے اپنے کن ارادوں کی تکمیل کے لیے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب سلطان نے انہیں کھانا کھا کر آرام کرنے کے لیے کہا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایبک میرے بیٹے، میں یہاں سے تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ لشکر کا بڑا حصہ تمہارے پاس رہے گا اور لشکر کا ایک حصہ لے کر میں شمالی علاقوں سے ہوتا ہوا غزنی چلا جاؤں گا۔ میرے بعد محتاط اور چوکس رہنا، اسی کوہرام شہر کو اپنا مرکز قرار دے کر فتح کے علاقوں پر اپنی گرفت رکھنا۔ میرے بعد اگر کسی بھی موقع پر تم محسوس کرو کہ اجمیر اور دہلی یا کسی علاقے کے اس حکمران نے جس نے ہماری اطاعت اور فرما برداری قبول کی ہے اس نے پرے پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں یا ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے قوت جمع کرنا شروع کر دی ہے، تم پہلے ہی اس پر حملہ ور ہو کر اسے اپنا مطیع بنا کر اس کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینا۔ سلطان شہاب الدین جب خاموش ہوا تب قطب الدین ایبک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا،
सुल्तान मोहतरम, पहले तो मैं आपका इंतहा दर्जे का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे हिंदुस्तान के मफतूह इलाकों का हाकिम मुकर्रर कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी में मैं अहसन तरीके से इलाकों की देखभाल करूंगा, लेकिन इस मौके पर मेरी आपसे गुजारिश है वो ये कि हैरत से कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ देखते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन पूछ लिया, वो क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक इस मौके पर संजीदा था। एक निगाह उसने अपने करीब बैठे ऐबक पर डाली, फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान, मैं चाहता हूँ कि ऐबक को आप मेरे साथ छोड़ दें, अपने साथ ना लेकर जाए। यहाँ ये मेरे लिए बेहतरीन दोस्त राज बनकर रहेगा। सुल्तान, मैं और ऐबक ने गुज़िश्ता शब अलहदगी में बैठकर एक इरादा किया था और हम दोनों से उस अमली जामा पहनाना चाहते हैं। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उसने पूछ लिया, वो कैसा इरादा है? कुतुबुद्दीन फिर एक गहरी निगाह अपने पहलू पर बैठा ऐबक पर डाली। उसके बाद वो कह रहा था, सुल्तान, हमने इरादा किया कि इससे पहले एक बार नहरवाला के राजा भीमदेव के मुकाबले में हमें पसपा होना पड़ा था, लेकिन मैं और ऐबक ये तहिया किए हुए हैं कि अगर हम उससे अपनी इस पसपाई का इंतकाम जरूर लेंगे। अपनी हालत को मजबूत करके अपनी ताकत और कुव्वत को खूब इस्तेमाल करने के बाद यहाँ मैं और ऐबक अपने लश्कर के साथ नहरवाला का रुख करेंगे और नहरवाला के राजा के लश्कर को एक बार जरूर शिकस्त से दो चार करके रहेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जब खामोश हुआ तो उस मौके पर सुल्तान ने ऐबक की तरफ देखते हुए फौरन बोल उठा, सुल्तान, हम हर सूरत में नहरवाला के राजा से अपनी पसपाई का इंतकाम लेना चाहते हैं। मैं भी इस मौके पर आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे यही कुतुबुद्दीन के साथ रहने दीजिए। वैसे मेरे मुतालिक आप जो भी हुक्म सादिर करेंगे मैं उस पर कारबंद रहने का पाबंद हूँ। सुल्तान शहाबुद्दीन थोड़ी देर तक मुस्कुराते हुए ऐबक की तरफ देखता रहा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को मुखातब करके कहने लगा, ऐबक मेरे बेटे, मैं एक शर्त पर ऐबक को तुम्हारे पास छोड़कर जाता हूँ। कुतुबुद्दीन ने चौंकने के अंदाज में सुल्तान की तरफ देखकर पूछ लिया, कैसी शर्त? शहाबुद्दीन मुस्कुराया, फिर वो दोबारा कह रहा था, कुतुबुद्दीन, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मैं तुम्हारी तरफ से बिल्कुल खुश और मुतमईन हूँ। ऐबक की शादी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की मारी गई। हालांकि वो लड़की बहुत अच्छी और इंतहा दर्जे की खूबसूरत थी और फिर उससे कोई औलाद भी ना हुई। मैं चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी अच्छी जगह ऐबक की शादी करने का एहतमाम करना। और अगर शहाबुद्दीन यही तक कहने पाया था तो मुस्कुराते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक बोल उठा, सुल्तान, मैं आपका मतलब समझ चुका हूँ। आपके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ऐबक के चाहने या ना चाहने के बावजूद एक बार उसकी और राजकुमारी कुमार देवी की मुलाकात कराऊं। उसके बाद मैं देखूंगा कि ऐबक उसके खिलाफ और वो ऐबक के खिलाफ कैसे रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। बहरहाल ऐबक से मुतालिक आप मुतमईन रहिए, मैं उसके लिए उसकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक उसकी जिंदगी का साथी चुनूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए सुल्तान कहने लगा, ऐबक, तुम्हें इस मामले में परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ऐबक को मैं साथ नहीं ले जाऊंगा, यही तुम्हारे पास हिंदुस्तान में रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इन इलाकों में अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करने में ऐबक यकीनन तुम्हारे दस्तराज साबित होगा। इस मौके पर मैं तुम्हें एक नसीहत भी करूंगा। जैसा कि आने वाले मुखबिर हमें खतरे से आगाह कर चुके हैं, जिससे भीम राज का उन्होंने जिक्र किया है, मेरे बाद जिस भीम राज का उन्होंने जिक्र किया है मेरे बाद उस पर कड़ी निगाह रखना। अगर वो अपनी अस्करी ताकत में इजाफा कर रहा है तो मेरे यहाँ से रवाना होने के बाद उसकी तरफ अपने मुखबिर भेजना, ताकि वो तुम दोनों को इसकी नकल हरकत और ताकत से मुतालिक आगाह करते रहे। और अगर किसी भी मौके पर तुम उससे खतरा महसूस करो तो फिर उसे माफ ना करना, उस पर हमलावर होना और हर सूरत में उसे रेज कर रखना और हर सूरत में उसे जेर करके रखना। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन दम लेने के लिए रुका। कुछ सोचा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक दोनों की तरफ देखते हुए कह रहा था, ये जो तुम दोनों नहरवाला पर हमलावर होने का इरादा रखते हो तो वहां भी अपनी मुकम्मल तैयारियों के साथ निकलना, इसलिए कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे लश्कर की तादाद कम रह जाएगी। लिहाजा यहाँ क़याम के दौरान न सिर्फ अपने लश्कर की तादाद बढ़ाना बल्कि इसके आला तरबियत और तंजीम का काम भी सरअंजाम देना। यहाँ तक कहते कहते सुल्तान शहाबुद्दीन रुका, खामोश हो गया, इसलिए कि आयन उसी लम्बे एक लश्करी आया और उसने खाना तैयार होने की इत्तला दी। सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बाकी सारे सालार रोक कर सुल्तान के साथ हो लिए। सुल्तान ने वो रात वही बसर की। अगले रोज सुल्तान अपने हिस्से के लश्कर के साथ कोहरम शहर से निकला। शुमाल का उसने रुख किया और शुमाल के इलाकों को फतह करता हुआ मगरिब की तरफ बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि गजनी जा पहुंचा। दोपहर के वक्त किरण कुमारी रसोई में कुमार देवी के साथ बैठी खाने के बर्तन बांध रही थी। शायद अपने माँ बाप के लिए दरिया की तरफ खाना लेकर जा रही थी। खाना बांधने के बाद वो बड़े गौर और इन्हिमाक से राजकुमारी कुमार देवी की तरफ देखने लगी। कुमार देवी की इस अंदाज को देखते हुए मुस्कुराई, फिर बड़े प्यार से उसे मुखातब किया, किरण कुमारी, मेरी बहन, तुम आज मेरी तरफ ऐसे गौर से क्यों देख रही हो, जैसे उससे पहले मुझे कभी देखा ही नहीं और मैं वो अजनबी हूँ कि अचानक तुम्हारे सामने आ बैठी हूँ। राजकुमारी कुमार देवी के अल्फाज पर किरण कुमारी कुछ देर तक सोचती रही, फिर कहने लगी,
मेरी बहन, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। गुज़िश्ता कई रोज से ये सोच रही थी कि वो सवाल तुमसे करूं, पर हिम्मत नहीं होती। खौफ था कि तुम नाराज हो जाओगी और फिर तुम्हारी नाराजगी की वजह से मैं खामोश ही रही आज फिर मैंने इरादा किया है कि वो सवाल तुमसे पूछो। फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। राजकुमारी कुमार देवी ने किरण कुमारी के गाल पर प्यार भरी जब्त लगाई, फिर कहने लगी, तुम कैसा भी सवाल करोगी मैं बुरा नहीं मानूंगी। पूछो, तुम क्या पूछना चाहती थी? तुम्हें मुझसे खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। क्या मैं तुम पर कोई हमलावर हो रही हूँ? पूछो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर वो सवाल मेरी जात से ताल्लुक रखता हो और मेरे लिए कितना भी तकलीफदा हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। किरण कुमारी को कुछ हौसला हुआ। दोबारा कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरी बहन, ये भी वादा करो कि इस सवाल का जवाब सच्चाई पर रहते हुए दूंगी। हाँ, वादा करती हूँ कि जो कुछ तुम पूछोगी बिल्कुल सच्चाई पर रहते हुए उसका जवाब दूंगी, मुस्कुराते हुए कुमार देवी ने कह दिया था। इस पर किरण कुमारी ने पहले गला साफ किया, फिर धीमे से लहजे में कुमार देवी की तरफ देखते हुए वो कहने लगी, मेरी बहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये जानना चाहती थी कि तुम अब आयबा से नफरत करती हो या मोहब्बत। किरण कुमारी के सवाल पर कुमार देवी की हालत यकसीर बदल कर रह गई थी। लगता था उस सवाल ने उसे चौंका कर रख दिया था। चेहरा हया के बाद सुर्ख हो गया था। कुछ देर वो बोल ना सकी, सोच में पड़ गई। ऐन उसी लम्हे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और किरण कुमारी को पुकारा। खाने के बर्तन जो किरण कुमारी ने पहले से बांध रखे थे उन्हें लेकर वो उठकर खड़ी हो गई। बुखलाए हुए लहजे में कहने लगी, मेरी बहन, तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, बस्ती की लड़कियां मुझे बुला रही है। वो खाना लेकर कश्तियों की तरफ जाएंगी। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जिस मौजू पर मैं तुम्हारे साथ गुफ्तगू कर रही थी, इस मौजू पर मैं बाद में भी गुफ्तगू कर लेंगे। मैं अभी जाती हूँ। दरवाजे को अंदर से जंजीर लगी होगी, वो अंदर नहीं आ सकती। अब तुम अपने कमरे में चली जाओ। इसके साथ ही खाने के बर्तन उठाकर किरण कुमारी रसोई से निकली। जब उसके साथ ही निकलते हुए कुमार देवी पिछले कमरे की तरफ चली गई थी। अब किरण कुमारी के एक हाथ में खाने के बर्तन थे, दूसरे से दरवाजे की जंजीर उसने खोली। बाहर बहुत सी लड़कियां खाने के बर्तन लिए खड़ी थी। किरण कुमारी ने दरवाजा बंद करके उसे बाहर से कुछ लगा दिया और उन लड़कियों के साथ दरिया सरस्वती की तरफ हो रही थी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के गजनी की तरफ चले जाने के बाद कोहराम शहर में कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक दूसरे सालारों के साथ मिलकर न सिर्फ अपने लश्कर में नई भर्ती करते हुए लश्कर की तादाद और कुव्वत में इजाफा करते रहे, बल्कि लश्कर की उन्होंने बेहतरीन तंज और तरबियत का काम भी सरअंजाम देना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन मुखबिरों ने इत्तला दी कि कम से कम 3 जगहों के हालात मुसलमानों के खिलाफ होने का अंदेशा था। उन 3 में से एक दिल्ली, दूसरा मीरठ और तीसरा गोल शहर था। ये गोल शहर ही था जो बाद में अलीगढ़ कहलाया, जिसने मोहम्मदन इंगोल और मिटल कॉलेज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से आलमी शोहरत पाई। बहरहाल अपने मुखबिरों से इत्तला पाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कोहराम शहर से अपने लश्कर को लेकर निकला। पहले दोनों ने मेरठ का रुख किया। बड़ी आसानी से मेरठ को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। अब उन्होंने अपने लश्कर के साथ दिल्ली शहर का रुख किया था। दिल्ली में उस वक्त मरने वाले राजा गोबिंद राय के लवाहिकीन हुकूमत कर रहे थे। दिल्ली में उस वक्त मरने वाले राजा गोबिंद राय के लवाहिकीन हुकूमत कर रहे थे। उनके अंदर भी चूंकि बाहमी तकलीश जारी हो चुकी थी, लिहाजा कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक दिल्ली पर हमलावर हुए। दिल्ली को भी फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। दिल्ली को फतह करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोहराम के बजाय दिल्ली को अपना मरकज हुकूमत करार दिया। उसके बाद उसने अपने मरकज को महफूज करने के लिए आसपास के इलाकों पर भी हमलावर होकर उसे अपनी सल्तनत में शामिल करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक दोनों अपने लश्कर को लेकर गोल शहर यानी अलीगढ़ को पहले ही फतह कर चुके थे। अब इर्द गिर्द के इलाकों को फतह करके उन्होंने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक ने सुल्तान शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा करने के बाद कोहराम के बजाय अपना मरकजी हुकूमत दिल्ली में मुंतकिल कर दिया। अब हिंदुस्तान में 3 बड़ी ताकतें थी जो मुसलमानों के लिए खतरा बनकर उठ सकती थी। एक कनौज और बनारस का राजा जयचंद और दूसरा नहरवाला का राजा भीमदेव और तीसरा अजमेर के मर जाने वाले राजा पृथ्वीराज का करीबी अजीज भीमराज था, जो मशरिक की दूर दराज सरजमीनों में एक तरह से घात में बैठा हुआ था। और पृथ्वीराज के अलावा गोविंद राय और दूसरा राजाओं के जिस कदर शिकस्त खुर्दा लश्करी थे, उन सब को उसने अपने पास जमा करना शुरू कर दिया था। कुछ इलाकों पर उसने अपने तसल्लुत भी कायम किए थे, अपने लश्कर के अखराजात पूरे करने शुरू कर दिए थे। इन दिनों नहरवाला का राजा भीम जो अब तो खामोश ही रहा, लेकिन कनौज और बनारस के राजा ने बड़े पुर्जे निकालने शुरू कर दिए थे। उसने तहिया कर लिया था कि हर सूरत में मुसलमानों से हिंदुस्तान के राजाओं की शिकस्त का इंतकाम लेगा। इन ख्यालात को सामने रखते हुए उसने पहले ही लश्कर की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी। दिन रात नए लश्करी भरते गए। मालोह के राजपूत तक उसके पास जमा होना शुरू हो गए थे।
नई लश्करियों की तरबियत का काम सर अंजाम देने के साथ साथ अंदर ही अंदर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कुव्वतों से राब्ता कायम करने की न सिर्फ माली फवाइद हासिल किए बल्कि अपनी ताकत और कुव्वत को भी मुस्तहकम किया गया। मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए जयचंद ने दो अहम कुव्वतों की तरफ कासिद भिजवाए। कुछ कासिद मेहरवाला के राजा भीमदेव की तरफ भिजवाए और उसे दावत दी कि मुत्तहद होकर मुसलमानों पर हमलावर हो और उन्हें हिंदुस्तान से निकालकर बाहर करे। मेहरवाला के राजा ने तो इस सिलसिले में कोई अहमियत अफजा जवाब नहीं दिया, कोई हिम्मत अफजा जवाब न दिया, खामोशी इख्तियार कर ली। ताहम जयचंद को उम्मीद थी कि अगर मेहरवाला के राजा भीमदेव ताउन नहीं कर रहा तो पृथ्वीराज का करीबी अजीज भीमराज जरूर ताउन करेगा। लिहाजा उसने एक खासा बड़ा वफद चंद तोहफे देकर भीमराज की तरफ रवाना किया। इस वफद में राजा जयचंद के कुछ सरकर्दा सालार भी शामिल थे। अब सूरत हाल ये थी कि जहां तक कनौज के राजा जयचंद का ताल्लुक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरकजी शहर दिल्ली से काफी दूर था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से जुनूब मगरिब में अजमेर तक फैल चुका था। जुनूब में दरिया गंगा और जमुना के दरमियान बुलंद शहर तक उसकी गिरफ्त हो चुकी थी, जबकि जुनूब और जुनूब मशरिक के रुख पर वो थानेसर और मेरठ तक अपनी गिरफ्त को मजबूत और मुस्तहकम कर चुका था। कनौज के राजा जयचंद का इलाका भी दूर दूर तक फैला हुआ था। ये इलाका दरियाए खाकर और दरियाए गंगा के दरमियान था और कनौज शहर से नीचे कानपुर, आसान, आला आबाद और बनारस से भी आगे तक उसकी अमलदारी फैली हुई थी। जहां तक अजमेर के मरने वाले राजा पृथ्वीराज के रिश्तेदार भीमराज का ताल्लुक है तो उसने मुसलमानों के इलाकों से दूर रहकर अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा किया था। करंजर और अजीन के ऊपरी हिस्से में जहां एक नाला चंडी और बांध शहरों के पास से गुजरते हुए दरिया चंदा में गिरता था, उन्हीं के अतराफ में जो घने जंगलात और आबादियां थी उन पर भी भीमराज की गिरफ्त थी और वही वो अपनी ताकत और कुव्वत को मुस्तहकम कर रहा था। एक तरफ उसकी गिरफ्त दरिया जमुना तक फैली थी, दूसरी तरफ वो जुनूब के दरिया नरबंदा तक के इलाकों को पामाल करता हुआ अपने लिए जरूरियात का सामान फराहम कर रहा था। साथ ही साथ जुनूब की छोटी छोटी हुक्मरानों से भी मुसलमानों के खिलाफ मदद हासिल कर रहा था। जिस वक्त कनौज के राजा जयचंद का वफद बांटा और चांटला शहरों के दरमियान भीमराज के इलाकों में पहुंचा तो उस वक्त भीमराज अपने कुछ सालारों के साथ बरसाती नाले के करीब ही एक जगह बैठा हुआ था। उसने राजा जयचंद की इस वफद का इस्तकबाल बेहतरीन अंदाज में किया, उन सब की इज्जत और एहतराम के साथ अपने करीब बैठाया। फिर उन्हें मुखातब करते हुए कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, क्या मैं जान सकता हूँ कि कनौज के राजा जयचंद ने तुम लोगों को किस मकसद के तहत मेरे तरफ भेजा है? इस वफद के अरकान ने सबसे पहले तो वो तवाइफ भीमराज की खिदमत में पेश किए जो कनौज के राजा ने उसके लिए भिजवाए थे। वो सारी चीजें देखकर भीमराज बड़ा खुश हुआ। फिर कनौज के राजा का एक सालार भीमराज को मुखातब करते हुए कहने लगा, आपने हमसे सवाल किया था कि हम राजा जयचंद की तरफ से क्या मकसद लेकर आए हैं। आपके इस सवाल का जवाब देने के बजाय अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप इन इलाकों में किस मकसद के लिए अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा कर रहे हैं और आपके क्या मकासद हैं, तो फिर आप बुरा ना मानिएगा। भीमराज के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, मैंने यहाँ क़याम के दौरान अपनी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा कर लिया है। इस वक्त जो मेरे पास तरबियत याफ्ता लश्कर है वैसा अजमेर के राजा पृथ्वीराज के पास भी नहीं था। जहां तक तुम्हारा ये सवाल है कि मैं ऐसा किन मकासद के तहत कर रहा हूँ, तो मैं तहिया कर रखा हूँ कि मैं हर सूरत में मुसलमानों के सुल्तान शहाबुद्दीन को शिकस्त देकर उसे हिंदुस्तान से निकाल बाहर करूंगा। मैंने अपने चंद साथियों के साथ चंडलाह के मंदिर में जाकर सौगंध भी खाई थी कि अगर कभी मुझे मुसलमानों के सुल्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल हुई तो मैं मुसलमानों के इस हुक्मरान का सर अपने हाथ से काटूंगा। यहाँ तक कहने के बाद भीमराज रुका, फिर इंतहाई दुख भरे अंदाज में कह रहा था, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती के हिंदुस्तान के सारे राजा एक तरफ थे और उनके तादाद 100 से भी कहीं ज्यादा थी और उनके मुकाबले में मुसलमानों का सुल्तान अकेला था और वो अपने मरकज से भी दूर था। उसे हमसे ज्यादा कहीं से रसद और कमक का सामान मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने क्या हुआ कि हमारे मुकाबले में उसे फतह हुई। मैं समझता हूँ ये हमारी बदकिस्मती थी या हमने खुलूस नीयत के साथ तराइन की दूसरी जंग में हिस्सा नहीं लिया था। यह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं के मन में घूट था जिसकी बिना पर उन्हें कामयाबी ना हो सकी। अब मैंने तैयार कर रखा है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल कर बाहर करके ही दम लूंगा। अब तुम अपने आने के मकसद बयान करो। भीमराज जब खामोश हुआ तब वो सालार मुस्कुराते हुए कहने लगा, हमारा यहाँ आने का मकसद वही है जो आप बयान कर चुके हैं और इसी बिना पर हमारे राजा जयचंद ने आपकी तरफ रवाना किया है। ठीक है, तराइन के मैदानों में जो जंग हुई उन राजाओं को शिकस्त उठाना पड़ी, उनमें हमारा राजा जयचंद भी शामिल था, लेकिन वहाँ हालात और थे और इस वक्त कनौज के राजा की तैयारी मुकम्मल न थी।
अब हमने मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों को अपने उरूज पर पहुंचा दिया है। हमारा राजा जयचंद चाहता है कि आपके साथ ताउन करके मुसलमानों पर हमलावर हो और उन्हें हिंदुस्तान से निकाल बाहर करें। अगर हम इस वक्त हमलावर हों तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान है, इसलिए कि हमारे राजा ने अपने मुखबिर मुसलमानों के इलाकों में दूर दूर तक फैला रखे हैं और उन्होंने राजा को खबर दी कि मुसलमानों का सुल्तान चंद रोज तक कोहराम शहर में क्याम करने के बाद वापस गजनी जा चुका है और यहाँ अब उसके दो अदद सालार हैं, एक कुतुबुद्दीन और दूसरा ऐबा। इन हालात में अगर हम मुसलमानों के इन सालारों पर हमलावर हो तो उन्हें शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर कर सकते हैं और अगर हम अपनी ताकत और कुव्वत के साथ उनका ताक़ुब करें तो दरिया सिंध तक कोई ताकत उन्हें हमें ताक़ुब करने से रोक नहीं सकेगी। यहाँ तक कहने के बाद कनौज के राजा का वो सालार रुका फिर अपने खदशात का इजहार करते हुए कह रहा था, जहाँ तक हमारा और हमारे राजा का अंदाजा है, अगर हमने मुसलमानों पर हमलावर होने में ताखीर की और शहाबुद्दीन के गजनी चले जाने के बाद उसकी गैर हाजिरी से फायदा उठाकर अपने लिए फवाइद हासिल करने की कोशिश न की तो फिर मुसलमान शुमाल और मशरिक पर हर तरफ से हमला करते हुए यहाँ किसी भी मकामी राजा को खुद मुख्तारी न रहने देंगे। लिहाजा वक्त का तकाजा यह है कि हम मुत्तहिद होकर मुसलमान से टकराए। जहाँ तक हमारे राजा जयचंद का लाए अमल है तो वो आपका ताउन चाहता है। राजा चाहता है कि एक वक्त मुकर्रर कर लिया जाए, उस वक्त मुकर्रर पर हमारा लश्कर कुनूज से निकलकर दरिया जमुना का रुख करे और बिल्कुल कुलियार की सीध में गंगा और जमुना के बीच में आपका लश्कर भी वहां पहुंच जाए। इसके बाद दोनों लश्कर मुत्तहिद होकर दरिया जमुना के किनारे किनारे मथुरा से होते हुए आगे बढ़े और मुसलमानों के सालारों से टकराए। अगर हम ऐसा करें तो मुसलमानों में इतना दमखम नहीं होगा कि हमारा मुकाबला कर सके। जहाँ तक मुसलमानों के लश्कर का ताल्लुक है तो हमारे मुखबिर राजा जयचंद को इत्तला दे चुके हैं कि मुसलमानों का कुल लश्कर दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्से को लेकर शहाबुद्दीन गजनी जा चुका है, बाकी आधा लश्कर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा के पास है। गोया ये दोनों शहाबुद्दीन के बेहतरीन सालार हैं, लेकिन हम चूंकि इन पर अददी फौकियत रखते हैं, लिहाजा अगर हम पेशकदमी करते हुए उन पर हमलावर हो तो हमें उम्मीद है कि हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। एक बार हमने जंग के दौरान उनके कदम उखेड़ दिए तो फिर वो कहीं भी जंग कर हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे और जब ऐसा होगा तब हम मुसलमानों को उन सरजमीनों से निकाल बाहर करने में कामयाब हो जाएंगे। जयचंद के सालार की खामोश होने पर हल्की हल्की मुस्कुराहट में भीमराज वफद के सारे अरकान की तरफ देखते हुए कहने लगा, लगता है हमारे और तुम्हारे ख्यालात आपस में मिलते हैं। मैं जयचंद के साथ मुकम्मल इत्तिहाद और ताउन करने के लिए तैयार हूँ। अगर हम दोनों मिलकर पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ करते हुए मुसलमानों पर हमलावर हो तो अपनी फतह और कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं, लेकिन इस ताउन और इत्तिहाद के लिए मेरी एक शर्त है। कनौज के राजा का सालार ने चौंकने के अंदाज में भीमराज की तरफ देखा, फिर चुपते हुए अंदाज में उसने पूछ लिया, कैसी शर्त? भीमराज ने अपने होठ पर जुबान फेरी, दो तीन बार अपनी पेशानी को अजीब से अंदाज में रगड़ कर उसके बाद कहने लगा, मेरी शर्त यह कि अगर हम मुत्तहिद तौर पर मुसलमान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएं तो हिंदुस्तान में उससे पहले जिन इलाकों पर मेरे अजीज और रिश्तेदार राजा पृथ्वीराज की हुकूमत थी उन इलाकों पर मेरी हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए। बाकी इलाकों से मुझे कोई गर्ज गायब नहीं होगी। वो तुम्हारा राजा जयचंद जिसे चाहे देता रहे। राजा पृथ्वीराज के बेटे गोलाराज का क्या बनेगा, जिसको इन दोनों मुसलमानों की हिमायत भी हासिल है। भीमराज ने कुछ सोचा, फिर आरियाना से अंदाज में कहने लगा, इसके लिए दो रास्ते हैं। अगर मैं और जयचंद दोनों मिलकर मुसलमानों को शिकस्त देते हैं तो पृथ्वीराज की सारी ममलिकत का हुक्मरान मैं होऊंगा और मौजूदा राजा गोला पर यानी पृथ्वीराज का बेटा एक तरह से मेरा राजकुमार बनकर रहेगा और मेरे बाद उस सल्तनत का वही वाली और वारिस होगा। और अगर गोला को पेशकश मंजूर ना हो तो उसका एक बेहतरीन हल ये है कि मुसलमानों को अगर हम शिकस्त देते हैं तो दरिया सिंध तक हम उन्हें टिकने नहीं देंगे। अब दरिया गंगा से लेकर दरिया सिंध तक वसी इलाके हमारी अलमदारी में आ जाएंगे और इन इलाकों में से जिस हिस्से का भी राजा गोला चुनाव करेगा उसे वहां का हकीम मुकर्रर कर दिया जाएगा। राजा भीम जब खामोश था तब सालार फिर बोल उठा, और मरकजी शहर दिल्ली से मुताबिक आपका क्या ख्याल होगा? भीमराज ने हल्का सा कहका लगा कहने लगा, मुझे दिल्ली से कोई गर्जो गायब नहीं रहेगी। दिल्ली अगर जयचंद रखना चाहे तो रख ले, मुझे कोई इतराज नहीं। अगर गोला को वहां का हकीम मुकर्रर किया जाता है तब भी मैं इस सिलसिले में कोई इतराज नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ वही इलाका चाहिए जिस पर इससे पहले पृथ्वीराज हुकूमत करता था, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। यहाँ तक कहने के बाद भीमराज रुका, फिर दोबारा वफद के अरकान को मुखातब करते हुए कह रहा था, पहले ये तो कहो तुम्हारे राजा ने जंग के लिए कुछ हाथी भी तैयार किए हैं? राजा जयचंद का सालार मुस्कुराया कहने लगा, इस वक्त हमारे पास लगभग 2000 हाथी हैं।
जिन्हें हम जंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास हाथी हैं जिनसे बवक्त जरूरत काम लिया जा सकता है। राजा भीम मुस्कुराया कहने लगा, ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी लगभग 1000 हाथियों को जंग में हिस्सा लेने के लिए तरबियत दे चुका हूँ। हमारी बदबख्ती के तराइन के मैदानों में जो मुसलमानों के सुल्तान के पास हमारी दूसरी जंग हुई, उसमें मरकजी कमानदारी चूंकि पृथ्वीराज के हाथ में थी और पृथ्वीराज मुत्तहिद लश्कर को सही मानों में लड़ा ना सका। उस वक्त भी हिंदुस्तान के मुत्तहिद लश्कर के पास लगभग 3000 हाथी थे, लेकिन जिस तरह उसने काम लेना चाहिए था उनसे काम नहीं लिया गया। हाथियों को आगे रखा गया और हाथियों के बीच में आड़े रहते हुए तीरंदाजी रखा जाना चाहिए था, ताकि मुसलमानों के लश्कर पर तीरंदाजी करके उनके घुड़सवारों को छल्ले करके रख देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारी मजीद बदकिस्मती के मुसलमानों के सुल्तान ने थोड़ी देर तक हमारे साथ जंग करने के बाद जानबूझकर अपने लश्कर के साथ पसपाई इख्तियार की। यहाँ तक कहने के बाद भीमराज थोड़ी देर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर जयचंद की सफारतकारों को मुखातब करते हुए कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले जो हमने तराइन के मैदानों में गलतियां की है उन्हें दोहराया ना जाए। मेरे लश्कर के अंदर ऐसे भी जवान है जो जानते हैं कि मैंने पृथ्वीराज को मशवरा दिया था कि अपने किसी भी लश्करी को हाथियों से आगे निकलने की इजाजत ना देना, लेकिन पृथ्वीराज ने मेरा कहा ना माना। वो ये ख्याल करता था कि मेरी निस्बत वो जंग का वसी तजुर्बा रखता है, वो सिर्फ वही ऐसी जंगी तरीके अपना सकता था जिन्हें इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को पसपा किया जा सकता है, उन्हें शिकस्त दी जा सकती है। मेरे अलावा हिंदुस्तान के कुछ दिगर राजाओं ने भी उसे मशवरा दिया था कि वो जिस तरह हाथियों के बीच से पीछे लश्कर पेशकदमी कर रहा है, इस तरह पृथ्वीराज की पेशकदमी को मुसलमानों के लश्कर तक जारी रखा जाए तो हमारी फतह और कामयाबी यकीनी होगी। लेकिन पृथ्वीराज ने मुसलमानों के सुल्तान की चकमा में आ गया। उसने ऐसी जंगी तरकीब की कि पृथ्वीराज ही नहीं, उसने हिंदुस्तान के सारे राजाओं को अपने सामने चारों शाने चित करके रख दिया। अब मैं मुसलमानों से जो जंग करना चाहता हूँ उसमें मुहतात रहना चाहता हूँ। मैंने पहली शर्त तुम्हारे सामने पेश कर दी है कि मुसलमानों की शिकस्त की सूरत में उन इलाकों का हुक्मरान मैं होऊंगा जो इससे पहले पृथ्वीराज की कमांडरी में थी। पृथ्वीराज का बेटा राजा गोला वैसे भी इन इलाकों का हकदार नहीं है, इसलिए कि उसने मुसलमानों की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार कर ली है और मुसलमानों को उसने खिराज देना कबूल कर लिया है। लिहाजा जो खिराज देना कबूल कर ले और जिसे वो खिराज दे, अगर उससे बाद में शिकस्त हो तो खिराज देने वाला उन इलाकों का हुक्मरान बनने का हकदार नहीं, बल्कि हकदार वो होगा जो इन इलाकों को खिराज देने से नजात दिलाए। इस मौके पर मैं तुम्हारे सामने दूसरी शर्त तो नहीं बल्कि पेशकश करता हूँ कि अपने राजा जयचंद के पास जाकर उसे बताना कि मैं मुसलमानों के खिलाफ उससे मुकम्मल इत्तेहाद और ताउन करने के लिए तैयार हूँ। जो जगह मुतयन की है वहाँ मुकर्रर वक्त पर पहुँच जाओ और कोशिश करूंगा कि मेरा लश्कर जयचंद से भी बड़ा हो। लेकिन एक बात राजा पर वाज़ेह कर देना कि जब मुसलमानों के साथ टकराव हो तो कोई भी कदम उससे मशवरे के बगैर नहीं उठाएगा। मुसलमानों को इन सरजमीन से निकालने के लिए मैं जयचंद के तहत भी काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ ये चाहूंगा कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे तो सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मेरे और अपने लश्कर में जो सालार हो उनसे भी मशवरा करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा करें तो मुसलमानों के खिलाफ हमारी फतह यकीनी होगी। भीमराज जब खामोश हुआ तो जयचंद का सालार बोल उठा, आप बिल्कुल कोई फिक्र ना करें, ये जो आपने शर्त रखी है जंग के दौरान आपसे मशवरा किया जाए, बल्कि मैं कहता हूँ आप ना भी कहते तब भी जंग के दौरान आपसे मशवरा किया जाना चाहिए। सिर्फ आप ही से नहीं बल्कि सारे सालारों को मिलकर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ इत्तिफाक राय से कार्रवाई करनी चाहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा ही होगा। और वो सालार लम्हे भर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जहाँ तक अजमेर के राजा गोला का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि उसका हकदार ही नहीं कि हिंदुस्तान के किसी इलाके का उसे हाकिम मुकर्रर किया जाए। उसने अपने शहर अपने इलाके आज़ाद कराने के बजाय मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। अपने लश्कर अपने इलाके आज़ाद कराने के बजाय मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए। आप किसी किस्म की कतई तौर पर कोई फिक्र और परेशानी का शिकार ना हो। जयचंद के सालार की इस गुफ्तगू से भीमराज खुश हो गया था। कुछ देर मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर चंद रोज मेरे यहाँ मेहमान की हैसियत से क़याम करो, तुम्हारी थकावट भी जाती रहेगी, उसके बाद वापस जाओ। जयचंद से मशवरा करने के बाद भीम मेरी तरफ कासिद भिजवा कर ये बता देना कि मुझे कब और किस रोज दरिया गंगा और जमुना के बीच कुलियारा के सीध में अपने लश्कर के साथ पहुंचना है और उसके बाद देखें उन मुसलमानों को हम क्या शक्ल नशर करते हैं। जयचंद के सारे सफारत कारवां ने भीमराज की इस गुफ्तगू से इत्तेफाक किया। फिर उन्होंने चंद रोज के लिए भीमराज के यहाँ क़याम किए रखा।